welcome back to Imran Khan Cricket Stadium, Peshawar. We are all ready for our second game of the night, which will be played between Karachi Region Blues and Multan Region. Well, the news from the toss is that Karachi Blues have won the toss and decided to have a ball first. Karachi Blues team have two changes. They have got Janzib Sultan, Ahsan Ali, Saad Beg, Syed Shah Raza, Ramiz Aziz the captain, Usman Khan wicketkeeper, Shahnawaz Dhani, Khalil Ahmed, Jahandat Khan, Asad Akhtar, Mehrad Mumtaz. And with Multan region, they made one change, and the whole team is Imam ul Haq the captain, Mohammad Naeem, Mohir Saeed, Bismillah Khan, Mohammad Shehzad, Wasim Akram, Amir Yamin, Sirajuddin, Arafat Minhas, Ali Majid Shah, and Mohammad Ismail Wattu. There's an opportunity, chance on the very first ball. Oh, that's over his head. Oh my God, you got to be very lucky, Naeem. He's disappointed. Just could not time the jump. Yep, he smokes that one. Down the ground for 4. You don't give opportunities to somebody like Naeem, he will punish you. Lovely shot. Great improvisation. Up and over cover area for 4. And again. This is fabulous batting. Batsmanship at its very best. Naeem is on a roll. 2 overs gone. 19 for none. This time Imam ul Haq came down the ground again, Jahandat Khan, and has sailed it over for 6 runs. What a good shot this is from Imam ul Haq, right from the meat of his bat. Dominating, came down the track, hit it over extra cover for 6, created room for himself. That's where he likes it. Once again, Mohammad Naeem has got the ball into his arc. He likes it there. He likes the leg side, and he won't spare you if you bowl it into that region. Third comes in, point goes back, slip goes out, and Imam softly, cutely plays it towards third for another boundary. Edge, no one there, a boundary to Imam ul Haq. He's bowling well, without much luck. Oh, he's dropped it. My God. What is happening out there in the middle? It's not the first time, it's in the gap also. Yeah. They're just missing out in the field. Karachi Blues, they're feeling the heat. It's not working for them. Look at the roar behind Shahnawaz Dhani. It's big. Is it big enough? Is it big enough? Not quite. One bounce and over the ropes maybe. But it was in the air for a long, long time. Naeem continues to flourish. अच्छा पुश किया है कवर की जानिब और ये चौका होगा. सिर्फ टाइम क्या है इसे, बकिया काम जो है गेंद की पेस से किया और उस जगह पर गेंद के जहां पर फील्डर मौजूद नहीं थे. तो 4 मजीद रन्स. जोरदार तरीके से घुमाया है फाइन लेग की जानिब. अब ये फाइन लेग की जानिब तो नहीं खेलना चाहते थे, इसको स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना चाहते थे. गेंद जल्दी आई, इनसाइड एज लगा और 4 रन्स के लिए गेंद बाहर चली गई. तो ये नईम की एक पॉजिटिव एफर्ट थी, बल्ले को तेजी से घुमाया. जोरदार ड्राइव, खड़े खड़े, और गेंद यहां से जहां तक देख सकते हैं हवा में थी. छक्का, बड़ा उम्दा, वेल बैलेंस, अच्छा फॉलो थ्रू भी. ये शानदार अंदाज है बैटिंग करने का, और ये छक्का बिल्कुल बॉलर के सर के ऊपर से शानदार छक्का.
ऊंचा शॉट ऑफ साइड पर, नीचे आ रहे हैं फील्डर और महफूज हाथों में ये कैच। तो इस तरह नईम की इनिंग का खात्मा हुआ और मुल्तान की ये पहली विकेट गिरी है, लेकिन सब्जेक्टिव टू द अप्रूवल ऑफ द ऑन फील्ड रादर टीवी अंपायर। अगर हम इसको दोबारा देखें, बिल्कुल सेफ लीगल डिलीवरी है इस बार। अब नहीं आगे खेल दिया है, टाइम ना कर सके गेंद को, गेंद हवा में रही लेकिन जानदार बॉल के नीचे आए। ये सेफ हैंड्स हैं, ग्राउंड में लड़ते हुए नजर आए, खुश दिखाई देते हुए कप्तान रमीज अजीज नहीं वापस लौटे 39 रन के बाद। मुल्तान ने बड़ा अच्छा आगाज किया है, तेज आगाज है, एक इनिशिएटिव ले लिया है, इस गेंद को पुल किया, पुल करने के अंदाज में खेल दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की जानिब। ये एक और अच्छा स्ट्रोक था, अब इस पे अंपायर तस्दीक करेंगे। और ये लगता है कि पाक आने के बाद कहीं पे जाके चौका है। और हाँ जी बिल्कुल, ये 4 रन अब मिले हैं यहाँ पर मुहीर को। कि स्ट्रोक बड़ा शानदार था मुहीर का, एक्सपीरियंस तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं। इमाम एक एस्टैब्लिश क्रिकेटर हैं और छोड़ा इस गेंद को, वाइड के 4 रन हैं और अब ये मजबूरी तौर पे 5 रन होंगे। तारिक रशीद, एक ब्लाइंड आपकी विजन होता है या नजर होती है, इस गेंद को अच्छे तरीके से मोड़ा है। अब ये लात पकड़ ली है रमीज ने, दोनों गेंदें आउटसाइड द लेग स्टंप थे, इस बार तो फ्लिक किया और 4 रन हासिल किए इमाम ने। इमाम तगड़े हैं इस एरिया में, जो स्क्वायर लेग का है या लॉन्ग लेग का है, बल्ले को अपने जिस्म के करीब रखते हैं, हर किस्म के स्ट्रोक्स खेलते हैं। देखिए पिछले कदम पर ड्राइव ऑन साइड पर 1 रन बना है, दूसरा बनाने की कोशिश करेंगे और 2 रन बन जाएंगे, जल्दी करना होगी और मुश्किल है। अब ये अब टीवी रेफरल होगा और इसमें लगता है कि स्ट्रगल कर रहे हैं मोहीर। थर्ड अंपायर के पास रेफर है, यहाँ पर फ्रेम में नहीं है और यहाँ पर मुहीर को जाना होगा वापस। रमीज एक अच्छी पोजीशन पे मौजूद थे, शानदार फील्डिंग, कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुए। स्क्रीन पे आउट करार दे दिया है अंपायर ने, मुहीर वापस लौटेंगे। 1 रन के लिए अपनी विकेट गंवाई है, बड़ा डेंजरस प्लेयर है मुहीर, बड़ा अच्छा सीजन जारी है उनका। What a good shot this is! Off the front foot. A slog hit from Bismillah Khan. You cannot afford to bowl it here. Bismillah is smacked 1 for 6. Yeah, that's why I said these are the two men, very essential to be out there in the middle. Picked up the length, down on one knee, and up she goes for 6. That's great batting. Imam on 49. Imam gets to his 50. A very responsible inning from a very good batter. Took his time, grabbed this opportunity, leading from the front is the man himself, Imam ul Haq, 50 of just 29 deliveries. He heard you early, he came down the ground and created that gap and sent it for 4 runs. So this is what you need. As the ball started to get older, the timings wouldn't work only. You need to have some power behind the ball as well, just like he did on this ball. Yep, he goes big and he goes in the gap also. Yeah, this is the time to get going. Imam ul Haq strikes a 4. He's chipped that one. He's chipped that one, and has it gone all the way? Probably will have to go to the third umpire. But what a good shot that was, a neat shot. Wonderful eyesight. Yes, it has gone all the way. Brilliant, Eamon Anwar. She saw it from here, all the way from the other end. That 6 brings up the 50 partnership, 53. And the potential that Karachi Blues have, we know they have got all hard hitters, but this time Bismillah Khan has played a wonderful pull shot into the gap for 4 runs. So he has heard us timely that such innings, such intent is required from him, because he is known for this. He is known for his hard hitting abilities. Up and over. Great improvisation from Bismillah Khan. 11 runs come off this over. जब ये दौड़ना शुरू करते हैं फिर शायकीन क्रिकेट आवाज बुलंद करते हैं, इनका इस्तकबाल करते हैं इस गेंद को, गेंद न जाने दे ऑफ साइड पर,
और बिस्मिल्लाह को जाना होगा। शाहनवाज को कामयाबी हासिल हुई है और धानी के लिए यहां पर पजीर आई है। जोरदार तालियां हैं। जिस तरीके से गेंद जाके सर पे लगी, झूम उठा खुशी से शायकीन है क्रिकेट। और धानी एक बड़ी कामयाबी के साथ एक ब्रेक थ्रू हासिल किया है और बिस्मिल्लाह जैसी बड़ी विकेट हासिल की है। ये देखिए शाहनवाज धानी काफी एक्साइटेड दिखाते हुए और क्राउड जो उनको बैक कर रहे हैं आज पेशावर शाहनवाज धानी के लिए। तो ये बहुत बड़ी विकेट है 34 पर। बिस्मिल्लाह खान आउट हुए। जोरदार ड्राइव और लगता है कि काम तमाम हो गया। तो इस तरह ये एक धचका लगा है। इमामुल हक अब जाएंगे और ये खलील ने कामयाबी हासिल की है। जोरदार तरीके से बल्ले को घुमाया। लगता था हमें 2-3 गेंदों पहले भी कि इमाम उजलत में है, तेजी से रन बनाना चाहते हैं और इस बार आउटरेज लगा, सीधा विकेट कीपर के ग्लव्स में गेंद गई। इससे पहले उस्मान ने गलती जरूर की थी लेकिन इस बार नहीं। 71 रन बनाने के बाद वापस लौटेंगे इमामुल हक। 164 पे 4 मुल्तान रीजन। बहरहाल शहजाद पूरी कोशिश करेंगे कि हिट आउट करें क्योंकि इख्तितामी ओवर्स का स्पेल है। इस गेंद को जोरदार तरीके से खेल दिया, ऑन साइड पर आउट हो जाएंगे या नहीं ये देखना होगा। फील्डर गेंद के नीचे आए और इस तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच और झूम उठे खुशी से शाहनवाज धानी की उनको दूसरी कामयाबी हासिल हुई है। और अभी चेक किया जा रहा है कि नो बॉल है कि नहीं। ये लीगल डिलीवरी है और अब शाहनवाज धानी ने फिर से कामयाबी हासिल की। इस बार डेंजरमैन शहजाद और रमीज अजीज का शानदार कैच, कभी आगे कभी पीछे लेकिन आई ऑन द बॉल और कैच को कामयाब। ये शाहनवाज धानी सेलिब्रेट करते हुए क्राउड से दाद वसूल कर रहे हैं। क्राउड के फेवरेट है शहजाद। 5 रन बनाने के बाद आउट हुए। 168 पे 5 है। सर पर दौड़ते हुआ इस गेंद को ड्राइव करने की कोशिश और उसमें नाकामी। गेंद अंदरूनी किनारा लग के गई है लॉन्ग लेग की जानिब और फील्डर की डाइव, 4 रन हो जाएंगे। मिस फील्डिंग। शाहनवाज धानी बहुत नाराज हैं, बरंगेख्ता है कि ये क्यों हुआ, पूरा हाथ क्यों नहीं डाला, चौका क्यों नहीं बचाया। इनका टिपिकल अंदाज है। धानी की आवाज है। इस गेंद को जोरदार तरीके से खेल दिया है ऑन साइड पर, मीट ऑफ द मैच और गेंद गई बहुत दूर बहुत दूर। बहरहाल इस मर्तबा चौका हासिल कर लिया है वसीम ने, लेकिन शाहनवाज धानी की जो बॉलिंग है, उसकी जो रफ्तार है, उसकी जो काट है, उसकी जो लाइन और लेंथ है, उसकी तारीफ करना होगी। यहाँ पर एक मजमा है, एक तादाद है शायकीन क्रिकेट की। धानी गेंद करेंगे, कलाई की मदद से अच्छा मोड़ा है बैकवर्ड स्क्वायर लेके जानिब 4 रन के लिए। ये आखिरी ओवर्स में ऐसा होता है और अब ये डू डाई सिचुएशन है फॉर मुल्तान सुल्तान। 18 ओवरों के बाद मुल्तान 180 5 विकेटों के नुकसान पर। जोरदार ड्राइव, जन्नाटेदार है लेकिन सीधी कवर्स में जाएगी, मिस फील्डिंग हुई। अब ऐसा नहीं होना चाहिए इस किस्म के क्रिकेट में। ये धानी थे मेरे ख्याल में थोड़े कंप्लेसेंट हो गए। बीट हो गए। बेहतरीन गेंद थी जहादाद की, वो जानते थे कि ऑफ साइड ऑफ स्टंप अगर इसको तो हम ये अब देखेंगे कि बॉलर ने कोई रिएक्शन शो नहीं किया लेकिन अरफात आउट हो चुके। ये आउटसाइड एज लगा, जहादाद की अच्छी गेंद ऑफ से बाहर। तो ये लीगल डिलीवरी है यहां से। ये देखिए ऑफ स्टंप पे गेंद की, कवर्स के ऊपर से खेलना चाहते थे, आउटसाइड एज लगा और फिर से महफूज हाथों में गेंद गई तो कामयाबी मिली जहादाद को। 8 रन बनाकर आउट हुए मुल्तान 189 फॉर 6। पुल ऑन साइड पर कोशिश लेकिन नहीं। इन द एंड अगर हम देखें इसे तो ये वही हिट थी जो कि लगानी चाहिए थी। तो इस तरह वसीम अब कामयाब हुए हैं पूरी ताकत से। ये फुल टॉस था, खड़े खड़े अच्छा फॉलो थ्रू है। अब दूसरे एंगल से देखिए, जोरदार ड्राइव ऑफ साइड पर, एक्स्ट्रा कवर की जानिब, फील्डर के गेंद के पीछे है, उसको रोक पाएंगे नहीं कि देखना होगा लेकिन नहीं, गैप पे खेला। तो इस तरह वो 200 रन का जो एक नफसियाती हदफ होता है वो हासिल कर लिया मुल्तान ने। 201 6 विकेटों के नुकसान पर वसीम ने आखिरी गेंद पर चौका लगाया जहादाद को। तो इस तरह 20 ओवर में 201 6 खिलाड़ी आउट। तो ये एक फाइटिंग टारगेट होगा फॉर कराची ब्लूज।
क्लास क्रिकेटर, 4 सदा से इनका ताल्लुक है। बड़े खुश शक्ल हैं और बड़े साहब फैसले देते हैं। काफी तजुर्बा इन्हें है अब कौमी क्रिकेट और पीएसएल में भी। पहली गेंद ड्राइव ऑफ साइड पे, फुल टॉस थी सीधा मिड ऑफ पर, इससे पूरा इस्तेफादा नहीं कर पाए एहसन। ड्राइव ऑफ साइड पर ड्रॉप हुआ, मुझे लगता है ये इमाम थे। लगता है कि गेंद काफी तेज थी और शायद वो जिसकी रफ्तार थी उससे थोड़ा खाइफ हो गए, इस तरह होता है। ड्राइव ऑफ साइड पर सीधा मिड ऑफ पर, इस बार सिटर था और इमाम ने इस मरतबा महफूज हाथों में कैच को लिया और ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है वसीम को और वापस लौटना होगा जहांजेब को, लेकिन तसल्ली की जाएगी कि आया ये लीगल डिलीवरी थी या नहीं। जी हाँ, डिलीवरी तो लीगल है यहाँ पर और वसीम देखिए केले बल्ला घूमा, टाइम नहीं किया और इमाम हक इस बार कोई गलती नहीं और देखिए खुश दिखाई दे रहे हैं, कामयाबी मिली। जहांजेब वापस लौटेंगे 8 रन के साथ, तो 10 पे पहली विकेट गिरी कराची ब्लूज की। पुल और छक्का है। देखिए ऐसी ये एक ताकत गेंद थी मैं कहूंगा इस मौके पर, जब प्रेशर डालना चाहिए था और एक लूज और शॉर्ट गेंद की और तोहफा था एहसान के लिए इस बार। ड्राइव ऑफ साइड पर 4 रन के लिए। गेंद जो है हमें उसका इंतजार करना पड़ा कि मिड ऑफ पर खड़े हुए फील्डर के पास जाएगी या नहीं जाएगी, लेकिन ये वाज़ेह अंदाज से एक फुल ब्लडेड ड्राइव थी। इमाम जिनका ताल्लुक मुल्तान से है, इस गेंद को जोरदार तरीके से खेल दिया है ऑन साइड पर, यह अथॉरिटी वाला स्ट्रोक था, गेंद पलक झपकते ही बाहर चले गए 6 रन के लिए। एहसान अली वसीम के अगेंस्ट चार्ज करने के लिए 2 कदम आ गया है, ऑन साइड के ऊपर से खेलने में कामयाब। ये शानदार प्लेसमेंट, ये बेहतरीन टाइमिंग, ये कुव्वत वाला स्ट्रोक, 6 रन के लिए ऑन साइड की जानिब। बड़ी उम्दा बैटिंग कर रहे हैं एहसान अली। सिराज के लिए पुल फजा में रही है, गेंद ज्यादा दूर नहीं गई, ये महफूज हाथ है, इस तरह साद को जाना होगा। साद एक अच्छे बैटर थे, टॉप एज लगा, मिड विकेट पर गेंद गई तो सिराज ने पहले ही ओवर में कामयाबी हासिल कर ली है। हाँ, ये लीगल डिलीवरी है। सिराज ने स्लोअर गेंद की, 7 बेग को फर्क लिया था, अंदाजा था इनको कि ये खेलने जाएंगे, लेकिन वसीम बॉल के नीचे आए, कैच और इस तरह एक और कामयाबी मिली। तो शानदार परफॉर्मेंसेस जारी है मुल्तान की टीम। 7 बेग 1 रन बनाने के बाद वापस लौटे, 29 पे अब 2 है। कट और उस जगह गई जिसका मैंने जिक्र किया था, इनको इसमें इज्जत-उल्ला हासिल है, ये अच्छा कट स्ट्रोक खेलते हैं और ऐसी जगह खेलते हैं, ये फील्डर के दरमियान में से स्ट्रोक खेलने में इनको, जैसे मैंने जिक्र किया, बड़ी महारत हासिल है। Ahsan Ali came down the ground against the first ball of Amir Yamin, who was exceptional in his last match and started off where he stopped from there. Yeah, that's a huge wicket. They were heavily reliant on Ahsan Ali. One shot too many. Not exactly where he intended to play, but played it straight to Shahzad. And Amir Yamin is a brilliant, brilliant cricketer. Ahsan Ali goes scoring 20, 35 for 3. This time gave himself some room, and he likes to go after this area because this is his favorite region and he's too good at playing cut shots. In the ground, so everyone has got the towel on. Oh no, Ramiz, oh, he takes a good catch also. Ali Majid Shah, he's taken a beauty. This line and length was never there to attempt a sweep shot on this. It was pitched on the off stump and it took a good bounce and skidded off the surface because we are having a dewy condition. But what a wonderful take this is. Amazing stuff. They were sloppy early on, but they have taken a good catch. Ramiz Aziz departs scoring 5 of 7 balls, 49 for 4. Skitty, but this one will go down to fine for 4. Not an ideal way to start off Ismail, because there will be a lot of eyes on him because he's been picked in HBL PSL. जी हाँ, क्योंकि हम ये जानते हैं कि क्राउड आपसे प्यार करता है, आप क्राउड से प्यार करते हैं उतना ही,
देखिए एक और मौका है यहाँ पे, एक और विकेट गिर जाएगी। शाह रजा जिनका आज पहला मैच था, ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे और अपनी विकेट गवा दी है। इस्माइल ने आते ही पहले ओवर में विकेट हासिल की है। शाहनवाज आप पे वापस आएंगे क्योंकि विकेट गिर गई है, बड़ा मोमेंट है। नो वरीज देयर एट दिस एंड। He just skidded it on, wanted to play it towards onside, leading edge. Another smart catch from a Multan fielder. This time it's Amir Yamin. Syed Shah Raza going back. Just checked out right before checking in. It's 56 for 5. This time it is hit hard by Mehran Mumtaz and it has gone for maximum. Wonderful stroke this is, and this is the need of the hour. Such a wonderful shot that is. Eyes wide open. Went on the one knee down. The ball up she goes for a 6. Yeah, we just realized that the bowlers have now understood what needs to be done on this surface, especially when defending. Another one. Another one, another 6. Same direction, same batter, same bowler. They start believing that they can get to 202. 9 overs done, 73 for 5. Usman Khan goes big, big enough for 6. Again giving himself room and then putting it over the cover for 6. This is too good from Usman Khan. He is limping, but he's trying his best for his team. Yes, he creates that room, and Ismail followed him, but he missed the length here. He gave him a fuller one, and he was ready to whack him on. मुल्तान डोमिनेट करता हुआ इस गेंद को कट किया, ये अच्छी कट थी। अब देखिए इसमें रन्स हम वक्त मौजूद हैं, लूज गेंद का इंतजार कर लें और एक ओवर में कम से कम एक चौका लगाने की कोशिश करें। अब इनके लिए कि ये लेफ्ट हैंडर है, आसान होगा। ग्लांस किया है, अंपायर का इशारा देखना होगा, ये चौका है और वाइड के 4 रन्स हैं। तारिक रशीद का सिग्नल कि ये चौका है बाय का। इस बार ऊंचा खेला है ऑन साइड पर, फील्डर कोशिश कर रहे हैं, कोशिश जंप लेकिन नहीं, नाकाम हुए। तो उस्मान वो कुछ कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। ये बिल्कुल 100% एग्रेशन था, गेंद की सही तरीके से लाइन में आया और उसको पहुंचा दिया मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए बाहर। इस बार तबाह बोल्ड कर दिया, उस्मान को कामयाबी हासिल की मोहिर सही ने और पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर यह कामयाबी मिली इनको। उस्मान खान की सूरत में ये बड़ी विकेट खेल से बाहर होते हुए कामयाबी मिली इस नौजवान लेफ्ट आर्म स्पिनर इमामुल हक खुश दिखाई देते हुए। जो लेफ्ट आर्मर हैं वो बड़े एक्यूरेट होते हैं और मोहिर यंग हैं, लेकिन उन्होंने बेहतरीन गेंद की, दरगे में नहीं ला सके इस गेंद को। उस्मान बोल्ड हुए और इस तरह मोहिर खुशी से फूले न समाये, पुरजोश। और जाहिर है कि ये बड़े फखरिया लम्हात हैं मोहिर के लिए। उस्मान को उन्होंने आउट किया, 43 रन बनाकर आउट हुए। अब बाहर बैठे हैं लेकिन जाहिर है कि एक अच्छी नहीं उन्होंने जरूर खेली। इस गेंद को ऊंचा खेल दिया है और एक सिटर है, शॉट तक पकड़े हुए फील्डर के लिए, तो मिलाकर गेंद को हासिल कर लिया और बाद एक कलाबाजी भी खा ली, इसको ब्यूटिफाई किया है इसको। लीगल डिलीवरी मोहम्मद नईम की, फ्लाइटेड गेंद की और इस मतलब टॉप हैच लगने के बाद गेंद हवा में रही। अली माजिद शाह इधर उधर होकर आखिर में कैच को करने में कामयाब हुए। यह दूसरी मर्तबा है क्या ये कैच ले रहे और मेहरान 19 रन बनाने के बाद वापस लौटते हुए तो 108 पे अब 7 हो चुके हैं कराची ब्लूज के। ये बैटर है इसमें तबाह ऑन साइड की जानिब खेले हैं और गेंद बाउंड्री की जानिब रवा दवा है, तो 4 रन मिल जाएंगे असद को पहली बाउंड्री हासिल करते हुए दूसरी गेंद के ऊपर। इसमें तबाह गेंद को खेले, गेंद हवा में है और फील्डर बॉल के नीचे आते हुए एक और विकेट मिल सकती है और इस बार भी मोहिर सही नाकाम दिखाई देते हुए। इससे पहले भी हमने देखा 2 कैचेस ड्रॉप हुए इनसे, ये तीसरी मर्तबा है। साइड पर सीधा पॉइंट पर, तो एक और कामयाबी। तो इस बार इस्माइल कामयाब रहे हैं और असद का एक
मेरे ख्याल में फ्लैशी स्ट्रोक ऑफ साइड पर सीधा पॉइंट पर गया। तो एक और धचका कराची ब्लूज को। विकेटें मेरे ख्याल में 9 पिंस की तरह गिरती हुई। ये बिल्कुल लीगल डिलीवरी है। बड़ा अच्छा कैच किया वसीम ने पॉइंट के पोजीशन पर, ये स्मैश किया था लेकिन गेंद गई सीधी वसीम के हाथ में और उन्होंने कोई गलती नहीं की, दूसरे अटेम्प्ट में कैच को करने में कामयाब हुए। तो एक और विकेट यहाँ पर 7 रन बनाने के बाद आउट हुए हैं। अच्छी गेंदबाजी इस बार तब अकेले जहांदाद, और इस बार हाथ खोलने का मौका मिला जहांदाद को 6 रन के लिए मिड विकेट की जानिब। ये यूजफुल बैटर है और ये देखिए जिस तरीके से गेंद बल्ले पर आई और इसको खड़े खड़े पुल कर दिया जोरदार तरीके से। काफी वक्त है इनके पास फ्रंट फुट पे। एक और ड्राइव पुल और इस बार भी कामयाबी मुकद्दर नहीं बनी। विकेट गिर गई एक और इस बार जहांदाद अटेम्प्ट करने गए थे एक और छक्का, लेकिन इस बार किस्मत ने यावरी नहीं की और इस तरीके से इलीगल डिलीवरी है। इस्माइल ने स्लोअर गेंद की जहांदाद को, इससे पहले तो छक्का लगाने में कामयाब हुए लेकिन इस बार टाइम ना कर सके, गेंद गई मिड विकेट की जानिब मोहम्मद नईम के महफूज हाथों में। तो एक और विकेट यहां पर हासिल हुई है इस गेंद पर। जहांदाद वापस लौटते हुए 12 रन बनाने के बाद आउट हुए। This time wanted to go towards mid-wicket, but Arafat Minhas had the last say. He has got the last one out. Wonderful bowling this is from him. It was within the stumps and Khalil wanted to charge up against him, but he couldn't come under the line of the ball. The fair delivery to depart the last batter for Karachi Blues. Have a look at this one. He had no idea where he wants to play this shot because he had turned himself too early. So Multan must be very excited by the performance they have put in this match. They were phenomenal with their batting and now they have done even far better in their bowling. So that's how it all sums up for this teams. Multan region scored 201 run for the loss of 6 wickets in 20 overs. Imam the highest run getter leading from the front, 71 of 40, 939 and Bismillah 34. Shahnawaz Dhani was the highest wicket taker for them, 2 wickets. Khalil Jandad got 1 each. Karachi Blues in reply got out on 127 runs in just 15.4 overs. Usman was the only highest run getter. Hassan scored 20 and Mehran scored 19. Ismail got 3 wickets, the highest wicket taker for Karachi Blues. So Multan region has won this match by 74 runs.